بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں طلاق دی؟ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنے زیادہ پریشان ہوئے کہ زمین سے مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈالنے لگے اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ ناظرین، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت زینب بنت مزون رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو ایک مشہور صحابیہ ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی شادی حضرت خنیس بن حفاظہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی اور انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ طیبہ کو ہجرت بھی کی تھی، لیکن ان کے شوہر جنگ بدر یا جنگ احد میں زخمی ہو کر شہید ہو گئے اور یہ بیوہ ہو گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہجری میں ان سے نکاح فرمایا اور یہ ام المومنین کی حیثیت سے ایک آشانہ نبوی کی سکونت سے مشرف ہو گئی۔ یہ بہت ہی شاندار، بلند ہمت اور سخاوت شعار خاتون ہے۔ حق کوئی حاضر جوابی اور فہم فراست میں اپنے والد بزرگوار کا مزاج پایا تھا۔ اکثر روزہ دار رہا کرتی تھی اور تلاوت قرآن مجید اور دوسری قسم کی عبادتوں میں مصروف رہا کرتی تھی۔ ان کے مزاج میں کچھ سختی تھی، اس لیے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت اس کی فکر میں رہتے تھے کہ کہیں ان کی کسی سخت کلامی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار ان سے فرمایا کرتے تھے، اے حفصہ، تم کو کس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے طلب کر لیا کرو، خبردار کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا تقاضا نہ کرنا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی ہرگز دل آزاری کرنا، ورنہ یاد رکھو کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ناراض ہو گئے تو تم خدا کے غضب میں گرفتار ہو جاؤ گی۔ یہ بہت بڑی عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ فقہ و حدیث میں بھی ایک ممتاز درجہ رکھتی تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 60 حدیثیں روایت کی ہیں، جن میں سے 5 حدیث بخاری شریف میں مذکور ہیں، باقی احادیث دوسری کتب حدیث میں درج ہیں۔ علم حدیث میں بہت سے صحابہ اور تابعین ان کے شاگردوں کی فہرست میں نظر آتے ہیں، جن میں خود ان کے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت مشہور ہیں۔ شعبان 45 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کا زمانہ تھا اور مروان بن حکم مدینہ کا حاکم تھا۔ اس نے ان کی نماز جناز پڑھائی اور کچھ دور تک ان کے جنازہ کو بھی اٹھایا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قبر تک جنازے کو کندھا دیتے چلتے رہے۔ ان کے 2 بھائی حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے 3 بھتیجے حضرت سالم بن عبداللہ اور حضرت عبداللہ بن عبداللہ اور حضرت حمزہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم نے ان کو قبر میں اتارا اور یہ جنت البقیع میں دوسری ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم کی پہلو میں مدفون ہوئی۔ وہ وقت وفات ان کی عمر 60 یا 63 برس کی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کو طلاق دے دی۔ ناظرین، دوسرے خلیفہ اور اسلام کی سب سے بڑی طاقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں وہ دن بھی آیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے کر گھر بھیج دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دی تو ان کا رو رو کر برا حال ہو گیا اور اس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے کہا کہ اب عمر اور اس کی بیٹی حفصہ کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن سے اللہ نے اسلام کی بہت سی خدمتیں لی۔ حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 10 سال تک حکومت کی اور پھر ایسا نظام قائم کر کے دکھایا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ لیکن اس مضبوط ترین انسان کی زندگی میں بھی ایک وہ دن آیا کہ جب ان کی بیٹی حضرت حفصہ کو طلاق ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوٹ کر رہ گئے، کیونکہ طلاق دینے والا کوئی عام انسان نہیں بلکہ ساری کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔
बुखारी शरीफ में इस वाक़े को बहुत तफसील से बयान किया गया है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद ही फरमाते हैं कि ये उन दिनों की बात है कि जब मैं मदीना के बाहर अवारी में रहता था, मेरे सभी घर वाले वहीं आबाद थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर हमारे घर से काफ़ी दूर था और मैं घर का बड़ा जिम्मेदार था, इसलिए मुझे अपने घर वालों के लिए कुछ खाने पीने का भी इंतज़ाम करना होता था। तो मैंने अपने एक मदीने में ही दोस्त से कहा कि चलो हम दोनों आपस में बारी लगा लेते हैं। वो इस तरह कि एक दिन तुम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जाना, जो भी हदीस और कुरान की आयत नाजिल हो तो शाम को तुम मुझे बता देना, और उस दिन जाकर अपने घर वालों के लिए कुछ पैसे कमा लूँगा। अगले दिन तुम काम काज पर जाना और मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर होकर जो हदीस कुरान की आयत नाजिल होंगी वो शाम को मैं तुम्हें बता दूंगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम दोनों की इसी तरह बारी चलती रही। एक दिन की बात है कि अचानक रात के वक्त मेरा वो साथी मेरे घर के दरवाजे पर आकर दरवाज़ा खटखटाने लगा। तो वो इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा रहा था कि मैं डर गया कि आखिर क्या मामला पेश आ गया है। मुझे तो लगा कि शायद पास ही यहूदियों ने मदीना पर हमला कर दिया है, इसलिए मैंने जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोला तो मेरा वो साथी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। मुझे देखते ही कहने लगा कि ए उमर, बहुत बड़ा हादसा पेश आ गया है। तो मैंने घबराकर पूछा कि क्या यहूदियों ने मदीना पर हमला बोल दिया है? तो उसने जवाब दिया कि नहीं, इससे भी बड़ा मसला पेश आ गया है। तो मैंने कहा फिर बताओ क्या हुआ? तो उसने कहा कि उमर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम बीवियों को तलाक दे दी। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों हज़रात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर थे और इन दोनों की बेटियां हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी का नाम हज़रत आयशा था, जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा चहेती बीवी थी, और हज़रत उमर की बेटी का नाम हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था, जो कि बहुत ज़्यादा इबादत गुजार बनती थी कि अल्लाह ने भी उनकी तारीफ फरमाई। जैसे ही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथी ने आकर उन्हें बताया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम बीवियों को तलाक दे दी है, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत ज़्यादा घबरा गए और जल्दी से रात ही में मदीना की तरफ दौड़े। सबसे पहले हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बेटी हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में गए। वो अकेली बेटी रो रही थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें देखते ही कहा कि ए हफ्सा, क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें तलाक दे दी है? तो हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम, बस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सभी से नाराज होकर कमरे में चले गए हैं और किसी से बात नहीं कर रहे हैं। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बेटी हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जोर से झटका दिया और गुस्से में कहने लगे कि क्या मैंने तुमसे पहले भी मना नहीं किया था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी भी चीज़ में जवाब ना देना, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कहना, आखिर तुम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों लड़ती हो? उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी में गए तो देखा कि बहुत से सहाबा कराम मिंबर पर खामोश बैठे थे और उनमें से कुछ लोग तो बैठे रो रहे थे। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये मंजर देखकर बहुत परेशान हुए और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी, लेकिन खादिम ने आकर बताया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खामोश होकर मस्जिद में सहाबा इकराम के पास आकर बैठ गए, लेकिन अंदर से दिल बेचैन था, इसलिए फिर से उठे और खादिम से जाकर कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो कि उमर आपसे मिलना चाहते हैं। खादिम अंदर गया, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त ना दी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर से सहाबा इकराम के पास आकर बैठ गए, लेकिन दिल में एक बेचैनी थी, इसलिए परेशान होकर फिर से उठे और खादिम से कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहिए कि उमर आपसे मिलने की इजाज़त चाहते हैं। तो खादिम ने वापस आकर जवाब दिया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इजाज़त नहीं दी। जब तीसरी बार भी मना हो गया तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मायूस होकर मस्जिद से बाहर जाने लगे। तो इतनी देर में खादिम ने पीछे से आकर आवाज़ दी कि ए उमर,
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें हुजरे में बुला रहे हैं। तो ये सुनकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत खुश हुए और जल्दी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हुजरे में पहुंचे। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजरे में जाते ही मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी का ये आलम देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर खजूर के पुरानी चटाई बिछाकर लेटे हुए थे। कमरे के एक कोने में पानी का घड़ा रखा था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जाते ही महसूस किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खामोश और परेशान हैं, तो सोचा कि कुछ मजाक की बात करके पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल खुश कर दिया जाए। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी बेटी हफ्सा से घर गया तो मैंने उनसे ऐसे पकड़कर घसीटा। उस वक्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात ऐसे अंदाज में बयान की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसी आ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्कुराता देखकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, क्या आपने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि नहीं ए उमर, मैंने तलाक नहीं दी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये सुनते ही मेरे दिल को बहुत सुकून मिला और बाहर आकर मैंने सभी को इस बात की खबर दी तो सहाबा इकराम की जान में जान आ गई। इसी तरह हदीस की किताबों में हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के तलाक के बारे में एक और बात मिलती है कि एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीकत में उन्हें तलाक दे दी, लेकिन वो तलाक रजी थी, मतलब सिर्फ एक ही तलाक दी, क्योंकि नाज़रीन शोहर को 3 तलाक देने का इख्तियार होता है। इसलिए अगर वो 3 तलाक की जगह सिर्फ एक ही तलाक दे तो वो जब चाहे अपनी बीवी को छोड़कर उसे अपने निकाह में वापस ला सकता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तलाक रजी दी थी। अब जिस वक्त हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तलाक हुई तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया और जब उनके वालिद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये खबर पहुंची तो आप इतना ज्यादा परेशान हुए कि जमीन से मिट्टी उठाकर अपने सर पर डालते हुए कहा, अब उमर और उसकी बेटी हफ्सा की कोई हैसियत नहीं। जब हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये रिश्तेदार हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये खबर हुई तो वो जल्दी से हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास पहुँचे और कहने लगे कि ए हफ्सा, आखिर ये हादसा कैसे पेश आ गया? तो हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रोते हुए जवाब दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे उकता कर मुझे तलाक नहीं दी, बल्कि उसके पीछे कुछ और ही बात है। अब ये बातें हो रही थी कि अचानक वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त हज़रत हफ्सा से रुजू करके उन्हें अपनी बीवी बना लिया। इस हदीस में तफसीर से आता है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ए अल्लाह के रसूल, आप हफ्सा को तलाक देकर ना छोड़ें, क्योंकि वो बहुत ही नमाजी और रोजे रखने वाली औरत है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त अल्लाह के हुक्म पर हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रुजू करके उन्हें अपनी बीवी बना लिया। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करें। आमीन।